Hello everyone. Today I'll just quickly summarize the chapter Bhuli, which is from class 10th NCERT Footprints Without Feet book. So I hope you all must have read the chapter, right? So I'll just quickly give the summary and summarize the whole chapter in the best possible way. So the story is basically about a girl whose name is Sulekha, and बचपन से उसको घर पे निगलेक्ट किया जाता था. एंड लेकिन लाइक इफ आई गो बाय द स्टार्टिंग, सो she had many negative qualities. And here we have a question कि क्यों उसकी टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लिया. And then did Bholi measure up to teachers' expectations? So we shall find the answers to these questions in the while reading the chapter. So starting with her name was Sulekha, and बचपन से उसको भोली बुलाते थे. The simpleton. Simpleton is the person who can be easily tricked, जिसको हम आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं. तो वो नंबरदार रामलाल की, नंबरदार is the person who collects the revenue official of the village is called as basically the nambardar. So he had 3 sons and 4 daughters. So Bholi was the 4th daughter. पहली थी राधा, then Mangla, then Champa, and Bholi was the 4th one. So जब वो 10 महीने की, then when she was 10th months old, ठीक है, उस time she fall off from the cot on her head, and perhaps उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से it is assumed कि she remained a backward child in the sense कि वो दूसरे नॉर्मल बच्चों से थोड़ी अलग थी. So this was and then when she was, जब वो पैदा हुई थी, then at that time she was very pretty, she was very fair. लेकिन जब वो 2 साल की हुई, she had an attack of smallpox. So ड्यू टू दैट उसके शरीर पे ओनली उसकी आंखें बच गई थी, बाकी पूरी बॉडी पे डीप ब्लैक पॉक मार्क्स थे. ठीक है, सो उसकी इसलिए पूरी बॉडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. इट वॉज जस्ट डिस्कवर्ड. ठीक है, अगली लगता था, उसका फेस अगली लगता था. So and then third problem was that कि why Bholi was so simpleton, कि पहले तो हमने देखा when she was 10 months old she fall off from cot and damaged some part of brain. When she was 2 years old she had an attack of smallpox. And third thing थी कि she couldn't speak until she was 5. ठीक है, and at last जब उसने finally बोलना सीखा she stammered मतलब अटक अटक के बोलती थी वो. And then बाकी बच्चे they used to make fun of her, and they mimicked is copied her. When you repeat after someone in a order to make fun of that person, that is mimicking. So and because of that she lost her confidence. ठीक है, उसको खुद पे she was not confident enough, and as a result she talked बहुत थोड़ा थोड़ा बोलती थी वो. Because when people make fun of you, usually you don't speak. So he had 7 children. 3 बेटे थे, 4 बेटियाँ थी. सन्स को, बेटे को भेजा था इन हायर सिटीज़ स्कूल्स एंड कॉलेजेस पढ़ने के लिए. आई मीन पहले स्कूलिंग होती थी एंड देन स्कूल्स के बाद कॉलेजेस. सो पढ़ाई करने के लिए दे वर सेंट आउट. चारों बेटियों में से राधा जो थी शी हैड बीन मैरिड, एंड मंगला की भी शादी इट हैड बीन सेटल, यानी कि फिक्स हो गई थी. एंड आफ्टर मंगला इट वॉज द टर्न ऑफ चंपा. ठीक है, सो ये दीज 3 गर्ल्स दे वर हेल्दी, गुड लुकिंग. तो इनकी in order to find bride rooms for them, in order to make marriage relations or find groom for these girls, it was not difficult because they were healthy and they were good looking. But Ramlal को भोली की चिंता थी because she neither had good looks, वो अच्छी भी नहीं थी दिखने में, because she had deep black pock marks on her body, she couldn't speak properly, so and she was neither intelligent also. So basically इसकी वजह से रामलाल used to be worried. So she was 7 years old. ठीक है, जब मंगला की शादी हुई. And in the same year a primary school for girls it was opened.
ठीक है. एंड तहसीलदार साहब जो थे, the head of a tehsil, he came to perform the opening ceremony. Basically the people at higher posts, they're invited for the opening ceremony. So उन्होंने रामलाल से कहा कि you are a revenue official, यानी कि you collect the revenue. Revenue is the टैक्स कलेक्ट करते हो. सो यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, एंड सो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. एंड ये एग्जाम्पल आप किस तरीके से सेट करोगे कि आप अपनी बेटियों को जब स्कूल भेजोगे तो आपका ये एग्जाम्पल देख के, आपका ये देख के कि आप अपने बेटियों को स्कूल भेज रहे हो, तो इसको देख के बाकी विलेजेस भी अपने बेटियों को स्कूल भेजेंगे. सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल. सो एट नाइट व्हेन रामलाल ही टॉक टू हिज वाइफ एंड कंसल्टेड, his wife, she shouted and that are you crazy, have gone mad, कि अगर गर्ल्स जाएंगी स्कूल then who would marry them, कौन करेगा शादी. बट रामलाल ऑल्सो, एज ही डिडंट हैव, इतनी हिम्मत नहीं थी कि ही कुड डिसोबे, वो जो तहसीलदार ने कहा है उसको ना माने. सो एट लास्ट हिज वाइफ सेड कि यू सेंड भोली टू स्कूल. एज इट इज़ उसके शी हैड अगली फेस, ठीक है. शी नीदर हैड गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना वो पढ़ाई में अच्छी है, लैक ऑफ सेंस, यानी कि शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट. सो इट इज़ देयर वेरी लिटिल चांसेस कि उसकी शादी हो. सो लेट द टीचर्स एट स्कूल, लेट देम वरी अबाउट हर. एंड जब एट लास्ट फाइनली वो लोग उसकी शादी के टाइम प्रॉब्लम आ गए तो द टीचर्स वुड ओनली they'll only have to say. So the next day then Ramlal, they decided कि चलो ठीक है, we'll send Bholi to school. So in this way they would obey the Tehsildar's words also, and they didn't had the care to find bridegrooms, right? So next day he caught Bholi's hand, who, Ramlal, ठीक है. उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ. भोली डर गई, शी वॉज फ्राइटेंड, बिकॉज उसे पता नहीं था स्कूल क्या होता है, ठीक है. सो कुछ दिन पहले उसे शी रिमेंबर्ड कि उनकी जो बूढ़ी गाँव थी लक्ष्मी, सो उसको घर से बाहर निकाल दिया था एंड उसको बेच दिया गया था. सो नाउ शी वॉज थिंकिंग कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. तो शी सेड नो नो नो, बिकॉज उसको पता नहीं था स्कूल क्या होता है. उसने बहुत इन टेरर, यानी कि इन फियर, एंड शी पुल्ड हर हैंड, अपना हाथ छुड़ा लिया अपने पापा की ग्रिप, यानी फादर्स ग्रिप से, यानी अपने पापा से अपना हाथ छुड़ा लिया, पापा की हाथ की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया, ठीक है. सो इन फियर, एंड शी सेड नो नो, मुझे नहीं जाना है स्कूल, बिकॉज शी डिडंट न्यू. सो रामलाल शाउटेड कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम बेवकूफ़ हो, आर यू फूल, कि मैं तुम्हें स्कूल ही ले जा रहा हूँ. देन बिकॉज शी डिडंट न्यू कि स्कूल क्या होता है, सो इसलिए शी वॉज गेटिंग फियर्ड. देन रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि उसे सबको थोड़े अच्छे कपड़े पहना दो आज के दिन एटलीस्ट, अदरवाइज टीचर्स एंड बाकी स्कूल गर्ल्स वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में. देन बिकॉज न्यू क्लोथ जो थे वो भोली के लिए कभी बने ही नहीं थे. जो उसकी बहनों के पुराने कपड़े थे, दे वर पास्ड ऑन टू हर, ठीक है. नोबडी केयर्ड कि उसके कपड़े कोई धोए, बट टुडे शी वॉज लकी कि उसको अच्छे से ड्रेस मिला था, बिकॉज वो बहुत स्ट्रंक हो गया था आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, एंड वो चंपा को फिट नहीं करता था. सो उसे नहलाया भी गया, एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर. मैटेड इज एंटैंगल, उलझे हुए जो बाल थे उसमें एकदम ऑयल लगाया गया. दे वर ड्राई, नोबडी टुक केयर ऑफ दैट. एंड देन उसे बिलीव होने लगा थोड़ा सा, हाँ ये बिलीव आया कि उसके घर से कोई अच्छी जगह है जहाँ उसे ले जाया जा रहा है, एंड फॉर दैट रीज़न उसको इतने अच्छे से तैयार किया जा रहा है. शी इज़ गेटिंग हर decent clothes to wear, and her hairs are also combed, and oil is being rubbed into them. Today everybody is taking care of her. जब वो स्कूल पहुँचे, so children were already in classrooms. So रामलाल ने अपना जो हाथ है उसकी बेटी का वो हेडमिस्ट्रेस को दिया. नाउ द गर्ल वॉज पुअर, लेफ्ट अलोन, शी वॉज एज इट इज, शी वॉज वेरी फियर्ड. So she looked about her with fear-laden eyes, and वो बहुत सारे रूम्स थे स्कूल में, एंड हर रूम में गर्ल्स लाइक हर
girls like her own age, they squatted on mats. Squatted is, you like you sit in a like, let me show you. ऐसे when four, two, three persons, they sit like in a circle, so that is what they squatted on mats. And but basically the squatted is, they sat on hills. Sat on heels. आपकी जो एड़ियाँ होती है उस पर वो लोग बैठी थी गर्ल्स, ठीक है. एंड दे वर रीडिंग, बुक से लिख रही थी, और दे वर राइटिंग ऑन स्लेट्स. स्लेट्स यानी आपकी जो ये रहती हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को लिखने के लिए दी जाती है, दैट आर कॉल्ड स्लेट्स, चौक से जिन पे लिखा जाता है. And the headmistress, she asked Boli to sit down in a corner in one of the classroom. अब बोली को पता नहीं था what is the school exactly, होता क्या है स्कूल, किया क्या जाता है. बट वो खुशी हुई कि इतनी सारी गर्ल्स थी उसकी एज की एंड सब लोग उधर थे. सो एंड उसको उम्मीद थी कि कोई एक लड़की इसमें से उसकी दोस्त बनेगी. एंड जो लेडी टीचर थी क्लास में, शी वॉज सेइंग समथिंग, कुछ बोल रही थी, उन लड़कियों को बता रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज दिस वॉज दर फर्स्ट डे. तो उसने पिक्चर्स को देखा जो वॉल पे लगी हुई थी, एंड जो कलर्स थे वो उसको फैसिनेट कर रहे थे, यानी कि उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे. जो हॉर्स था, इट वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. सो जो हॉर्स था उसका कलर ब्राउन कैसा था, as the Tehsildar came to visit their village. Then goat was like the goat of their neighbor. Goat का जो black color था, it was just like the goat of their neighbor. Parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And cow was just like their Lakshmi. ठीक है. And suddenly बोली notice किया कि teacher उसके side में खड़ी है and teacher is smiling at her. What's your name? Bo bo bo. She could stammer no further than that. तो अटक के उसने अपना वो नाम भी तक बता नहीं पाया. सो इस अबव पैराग्राफ से हमें ये समझ आता है कि भोली इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड शी इज़ कोरिलेटिंग थिंग्स, एंड उसको if she is provided with good education, like she is interested in studies, so a chance must be given to her to study. So she's here. This is important, quite important. And here we're talking about 4 animals. First is the horse. So horse, she is relating with the horse was brown just like the horse on which Tehsildar had come to visit their village. Then she is talking about the goat. Goat was black just like the goat of their neighbor. Then she is talking about the parrot. Parrot was green just like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And 4th animal जो है that is cow, and वो सिर्फ वो उनकी लक्ष्मी की तरह ही था. So she is correlating things that shows her interest in studies. The colors attracted her. अब वो अपना नाम नहीं बता पाई, जस्ट स्टैमर कर अटक रही है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बता पाई. सो जस्ट शी बिगेन टू क्राई एंड वो रोने लगी इन अ हेल्पलेस. सो शी केप्ट हर हेड डाउन एंड उसने अपना नीचे सर लाइक हेड डाउन कर लिया बेंच पे. एंड एक sorry, she was sitting, right? There were no bench. Basically, so she kept her head down. यानी कि when you sit like, just a sec, and so she like knees पे अपना head रख दिया. ठीक है, something like this. I think I hope you're able to imagine and correlate a little what I'm trying to say.
So she kept her head down and as she sat in the corner, she was not daring. उसमें उतने courage नहीं थे कि वो उन लड़कियों की तरफ देखे who was sitting beside her, उसके साइड में बैठी थी, and they were still laughing at her, उस पर हंस रही थी because she couldn't even tell her name properly. जब स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां हरिडली दे रैन हरिडली, बहुत जल्दबाजी में बाहर गई क्लास से. इवन वी, जब हमें when the bell is rung and we just have the hurry to leave the classroom as soon as possible. So the same was that, but भोली का first दिन था, as it is उसे अपना नाम तक बताने नहीं आया. She was sad, she didn't have the courage to stand up, get up and move out of the classroom also. And उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था, and वो she kept on sobbing, यानी सुबकते रही एंड रोती रही धीरे धीरे. भोली, सो टीचर्स की वॉइस जो थी, इट वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में उसे किसी ने इस तरीके से नहीं बुलाया था. एंड दिस थिंग टच्ड हर हार्ट, दिस वॉइस टच्ड हर हार्ट. टीचर ने बोला उठो, ये इट वाज नॉट कमांड, बट उस टीचर ने बहुत फ्रेंडली तरीके से बोला. इट वाज अ फ्रेंडली सजेशन. सो भोली उठ गई. अब टीचर ने बोला कि अब तुम अपना नाम बताओ. अब उसके पसीने फिर छूट गए. अब क्या, फिर उसकी जो स्टैमरिंग टंग है अटकती हुई, फिर से उसको शर्मिंदा करेगी. अब इतनी जो फॉर द सेक ऑफ काइंड वुमेन, यानी कि शी इज़ बेसिकली डिस्क्राइबिंग द टीचर कि इतनी जो अच्छी दयालु वुमेन है, उसके लिए एटलीस्ट भोली ने कहा कि उसको एफर्ट उतना लगाना चाहिए कि एटलीस्ट अगेन शी ट्राइज टू स्पीक हर नेम, बिकॉज उसकी टीचर ने इतना प्यार से उसको बोला था. सो एंड बिकॉज भोली को ये भी लगा कि इतनी जो अच्छी टीचर है, इतनी अच्छी इनकी आवाज़ है, ये मुझ पर नहीं हंसेगी. इसीलिए भोली ने कोशिश की एंड अगेन अगेन वो अटकने लगी. तो टीचर ने फिर उसको एनकरेज किया, हंसी नहीं, एनकरेज किया कि चलो चलो बोलो बोलो, पूरा नाम बताओ. एंड एट लास्ट वो अपना पूरा नाम बता पाई, भोली. एंड उसको लगा कि इट इज़ एन ग्रेट अचीवमेंट. उसको इतनी राहत मिली एंड शी फेल्ट सो हैप्पी. यस, सो व्हेन गोल्स आर अचीव्ड इट गिव्स अस इमेंस हैप्पीनेस. वेल डन. देन टीचर ने उसको उसकी पीठ थपथपाई इन अ वेरी अफेक्शन, यानी कि विद लव एंड विद रिगार्ड. एंड दे सेड कि अपना जो डर है वो बाहर निकालो अपने दिल से. एंड आप जो हैं, भोली को कहा कि यू वुड बी एबल टू स्पीक. जिस तरीके से सब बोलते हैं आप भी वैसे बोलने लगोगे, बस ये जो डर है ये बाहर निकालो. तो भोली ने ऊपर देखा, कुछ बोला नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन इस तरीके से बना कि हाँ सच्ची. तो टीचर ने कहा यस यस डेफिनेटली, बहुत ईजी है, आपको रोज़ स्कूल आना है. एंड भोली टीचर asked कि will you come. So Bholi said कि yes basically. Sorry, Bholi no, just she said, shook her head, just nodded कि हाँ. तो टीचर ने कहा नो, जोर से बोलो. So again Bholi said ये yes, and she was able to speak properly. So Bholi was, उसको खुद सरप्राइजमेंट हो रहा था कि she is able to speak properly, and she spoke it. So didn't I tell you, now take this book. So टीचर ने कहा कि मैंने कहा था ना, you would be able to speak properly like everyone else. and अब ये बुक लो. So बुक जो थी, it was full of nice pictures थे उसमें, and pictures were in कलर में थे. डॉग, कैट, हॉर्स, इन सब के पिक्चर्स थे. काउ उनकी लक्ष्मी की तरह थी. So they all were colorful pictures, and with every picture there was a word in big black letters, basically the name of the animal. ठीक है. एंड अब एक महीने में तुम इस बुक को पढ़ लोगी, एंड फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, एंड फिर उससे भी बड़ी. कुछ टाइम में, कुछ दिनों में तुम सबसे ज़्यादा लर्न एजुकेटेड हो जाओगी इस विलेज में. एंड फिर कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं, बल्कि लोग जो है तुम्हें रिस्पेक्ट से देखेंगे.
एंड तुम बिना अटके बोल पाओगी। समझ गई? अब जाओ घर पे एंड कल सुबह जल्दी आ जाना। तो भोली को ऐसे लगा कि सभी बेल्स जो है विलेज टेम्पल की, दे वर रिंगिंग ऑल टुगेदर, एंड जो पेड़ है होते हैं उसके पेड़ है स्कूल हाउस के सामने, that blossomed into big red flowers. Her heart was also throbbing. It was beating strongly. Heart rate बहुत fast था कि with a new hope and a new life, उसकी लाइफ में एक नई उम्मीद आ गई थी एंड शी was going to start a new life because अभी उसको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला था। ठीक है? सो लेट अस क्विकली रिवाइज कि हमने अब तक स्टोरी में क्या देखा। भोली नाम की एक लड़की है जिसका नाम सुलेखा है। शी इज़ अ वेरी सिंपल्सन गर्ल फॉर द 3 रीजन्स। एक फर्स्ट वन बीइंग व्हेन शी वाज 10 months old, she had fallen off from a cot. Second one is कि when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Third one, she couldn't speak until she was 5. When at last she learned to speak, she stammered, right? Then next, her sister, one day when it was like Mangla was married and she was 7 years old. So उसी टाइम एक स्कूल भी ओपन हुआ उनके विलेज में एंड तहसीलदार said कि you should, he came to open the ceremony and he said कि you should set an example, you should send your daughter to school. Next being, so they decided, her parents decided to send Boli to school. When Boli went to school, she couldn't tell her name to the class also, and she kept on sobbing, she kept on crying. Then the bells rang and all girls, they moved out of the class. Teacher came to her and teacher encouraged her and asked her to speak her name. Teacher spoke to her in a very soothing voice which touched her heart. And finally Bholi was able to speak her name, and teacher asked Bholi to come every day to school and said to her that one day in a few time she would become more learned than anyone else in the village, and then nobody would laugh at her, everybody would give respect to her. So seeing this, Bholi felt as if all the bells in the temple rang together, all the trees in front of the schoolhouse, they had blossomed. They were green and they had blossomed. उन पे big red flowers खिले थे, and her heart was beating strongly with a new hope and a new life. साल बीतते गए एंड विलेज एक स्मॉल टाउन बना, और जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल बना। अब वहाँ पे एक सिनेमा था अंडर टिन शेड एंड कॉटन गिनिंग मिल। जो मेल ट्रेन थी इट बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। एक दिन रामलाल ने एट नाइट ने कहा कि मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ क्या। हु इज़ बिशंबर? वो दूल्हा है, ही इज़ ग्रूम who has been decided for marriage for भोली। तो उसकी वाइफ ने कहा हाँ बिल्कुल, भोली को तो, भोली जो है वो किस्मत वाली होगी, शी वुड बी लकी कि उसको इतना अच्छा ब्राइड ग्रूम मिला, इतना अच्छा दूल्हा मिला है, इतना अच्छा शॉप है, एक बड़ा शॉप, हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर कि बहुत सारे सेवरल थाउजेंड्स, बहुत सारे पैसे हैं बैंक में, एंड वो कोई दहेज में नहीं मांग रहा। फिर रामलाल ने कहा हाँ वो तो सही है बट वो इतना यंग नहीं है, ऑलमोस्ट मेरी एज का है, एंड वो ही लिम्प्स, यानी कि उसके एक पैर में जो है इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, ठीक है, अपंग यू कैन से। हाँ, सो एंड द चिल्ड्रन जो है उसके पहली बीवी के, पहली पत्नी के, दे आर क्वाइट ग्रोन अप, वो बड़े हो चुके हैं। सो यू कैन नो इमेजिन कि कितना बूढ़ा आदमी है, एंड दे आर गेटिंग मैरिड टू भोली। सो उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ व्हाट डज इट मैटर, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर मैन, कि 45 या 50 जो है ये कोई बड़ी एज नहीं है आदमी के लिए।
हम लोग बहुत लकी हैं, किस्मत वाले, कि वो दूसरे विलेज से, दूसरे गांव से है, एंड भोली के पॉक मार्क्स के बारे में एंड उसकी मंद बुद्धि, लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं जानता। अगर हम लोग ये प्रपोजल, ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मे बी वो पूरी ज़िंदगी अनमैरिड रहेगी। लेकिन फिर रामलाल कहता है कि बट भोली क्या कहेगी? तो उसकी पत्नी कहती है कि हुज रामलाल्स वाइफ कि व्हाट विल दैट विटलेस से, वो तो एक डम काउ है, यानी कि a dumb cow basically who doesn't speak, who doesn't say anything. सो रामलाल ने कहा कि या मे बी यू आर राइट। अब कोर्टयार्ड के दूसरे कॉर्नर में भोली जो है कोर्ट पे वो जाग रही थी एंड शी वॉज जस्ट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स जो धीरे धीरे बात कर रही थी। शी वॉज लिसनिंग टू देम। सो बिशंबर नाथ, ही वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर एंड वो बहुत बड़ी पार्टी के साथ फ्रेंड्स, जिनमें पार्टी बेस ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें फ्रेंड्स एंड रिलेशंस थे वो शादी के लिए, वो सब उनको लेके आया था। बहुत बड़ा बैंड था एंड दे वर प्लेइंग, द बैंड वाज प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म दैट हेडेड द प्रोसेशन। बेसिकली शादी के आगे दूल्हे के साथ दैट बैंड वाज मूविंग अहेड एंड the bridegroom was riding a decorated horse. रामलाल जो है वो इतना बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इतना पॉम्प एंड स्प्लेंडर, यानी कि इतना सब कुछ देख के वो खुश हो गया, बिकॉज उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जो चौथी बेटी थी उसकी इतनी बड़ी धूमधाम से शादी होगी। भोली की जो एल्डर सिस्टर्स थी द ओकेजन, यानी कि उसकी शादी पे आई थी, कौन, राधा मंगला चंपा, वो जल रही थी उसके नसीब से। अब जब ये शुभ मुहूर्त आया, पंडित ने कहा कि दुल्हन को लेके आओ। तो भोली जो थी वो लाल रंग के रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में, लाल रंग के शादी के जोड़े में वो आई और अपनी जो ब्राइड की प्लेस होती है, सैक्रेड फायर इज, जहाँ पे हवन होता है शादी में, तो उसके साइड में आके बैठ गई। शी वॉज क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। अब तो पंडित जी ने कहा कि माला, हार, गार्लैंड जो है, हार जो है वो दुल्हन को पहना। नॉट सॉरी, पंडित ने नहीं, फ्रेंड, वन ऑफ बिशंबर्स फ्रेंड ने कहा कि चलो गार्लैंड करो ब्राइड को। सो ब्राइड ग्रूम जो है, दुल्हे ने, he lifted the garland of yellow marigolds. Garland was made up of yellow marigold flowers. So woman जो है, एक वुमेन थी, उसने जो आगे घूंघट रहता है, सिल्कन वेल, वो थोड़ा सा पीछे ये किया ब्राइड के फेस से। सो बिशंबर ने तुरंत एक क्वाइट ग्लिम्स लिया एंड गार्लैंड वो आगे पहना नहीं पाया, गार्लैंड वही उसके हाथ में रुक गया। सो ब्राइड ने अपना जो भोली वाज द ब्राइड, उसने धीरे से अपना वापस घूंघट अपने फेस पे ये कर लिया। तो बिशंबर की फ्रेंड ने कहा कि देखा आपने? तो बिशंबर ने कहा अपने फ्रेंड से कि तुमने उसको देखा है, उसके पॉक मार्क्स है फेस पे। सो व्हाट, यू आर नॉट अ यंग ईदर, उसके फ्रेंड ने कहा। लेकिन फिर भी अगर मैं इससे शादी करूँ तो इसके पापा ने मुझे 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो रामलाल उसके पास गया एंड उसने अपना जो टर्बन है वो रखा उसके आगे एंड कहा कि इतना मुझे मत ये करो, ह्यूमिलेट करो, यानी कि इतना मत मुझे ह्यूमिलेट, इतनी बेइज्जती मत करो, ठीक है? 2000 रुपीज़ ले लो, 5000 नहीं। तो उसने कहा, बिशंबर ने, कि नहीं 5000 नहीं, तो हम लोग चले जाएंगे, अपनी बेटी अपने पास रखो। तो थोड़ा तो रहम करो प्लीज़, अगर आप वापस चले गए तो मैं अपना मुंह दिखा नहीं पाऊँगा किसी को विलेज में, रामलाल ने कहा। तो उसने कहा बिशंबर ने कि चलो बाहर, फिर 5000 दो और आउट। तो
रामलाल टीयर्स बिगन, उसको आंखों से उसके आंसू आने लगे एंड ही वाज टेंस्ड एंड उसने अपना ही वेंट एंड उसने काउंटेड द नोट्स एंड देन उसने एक बंडल रखा दूल्हे के पैरों के सामने। अब जो बिशंबर का ग्रीडी फेस था उस पर एक जीत की स्माइल थी। उसने बेट लगाई थी, ही गैम्बल एंड वो जीत भी गया था इवन, ठीक है। तो उसने कहा कि चलो गार्लैंड दो मुझे, अभी हार दो। उसने कहा वो तैयार हो गया था पहनाने के लिए। फिर से घूंघट को ब्राइड के फेस से निकाल थोड़ा सा पीछे किया गया। जब गार्लैंड पहनाते तो पीछे करते तो एंड लेकिन इस टाइम भोली की आंखें जो थी दे वर नॉट डाउन कास्ट, नीचे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, भोली वॉज लुकिंग अप एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव इज वुड बी हस्बैंड, जो होने वाला था पति, उसको देख रही थी सीधा। एंड उसके आईज में, भोली के आईज में ना तो गुस्सा था ना नफरत थी, लेकिन कोल्ड डिसरिस्पेक्ट थी। वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। पहले रिस्पेक्ट दे रही थी शायद, इसीलिए डाउन कास्ट दिया, लेकिन अब भी वो शी वाज लुकिंग स्ट्रेट और उसकी आंखों में कोल्ड डिसरिस्पेक्ट थी। बिशंबर ने गार्लैंड रेस किया ताकि वो दुल्हन के नेक के अराउंड पहना सके, लेकिन वो ये पहले भोली ने अपना हाथ शी स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग, तो उसने ऐसे झटक दिया हाथ। सो इस तरीके से कि जो गार्लैंड था इट फ्लंग इनटू फायर, उड़ के फायर में चला गया। उठी एंड उसने अपना घूंघट फेंक दिया निकाल के। शी पुल्ड अवे एंड उसने जोर से कहा पिताजी इन सच अ लाउड एंड क्लियर वॉइस, एंड कि उसके सारे रिलेटिव्स, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, सब लोग हैरान एंड शॉक्ड हो गए थे कि जो भोली है शी इज स्पीकिंग विदाउट इवन थोड़ा भी अटके वो बोल रही है। पिताजी अपने पैसे वापस लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। सो रामलाल जो था ही वॉज थंडरस्ट्रक, ही वाज शॉक्ड एंड गेस्ट जो है वो दे बिगिन टू विस्पर एंड फुसफुसाने लगे कि कितनी बेशरम है, कितनी भद्दा, मतलब कितनी अगली दिखती है, कितनी बदसूरत दिखती है, कितनी बेशरम है। तो रामलाल ने कहा कि तुम पागल हो क्या, अपनी एटलीस्ट फैमिली की इज्जत के लिए हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हो, अपनी फैमिली के लिए, अब फैमिली की थोड़ी बहुत इज्जत करो। तो भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस लेम ओल्ड मैन से शादी करने वाली थी, लेकिन मैं इतने मीन, इतने लालची, ग्रीडी इंसान से शादी और जो डरपोक है ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, तो क्या बेशरम लड़की है। हम सबको लगा कि ये हार्मलेस डम काउ है कि किसी को हार्म नहीं करेगी। हार्मलेस डम काउ इज डम काउ, तो पहले ही उसकी मम्मी ने उसको कहा था कि डम काउ है, यानी कि कुछ किसी के कुछ लेना देना नहीं है। एंड so all the people began to talk about her कि what a shameless, harmless, dumb cow, what a shameless girl। तो भोली जो है she turned intensely, violently on the old woman who was speaking this कि she is a harmless dumb cow, कि yes aunty आप सही कह रही हैं, although you all, आप सबको लगा कि I am a dumb driven cow, कि आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, एंड इसीलिए आप जो है मुझे इस बेदर इंसान को सौंप रही थी। लेकिन अभी ये डम काउ, अटकने वाली फूल, ये बोल रही है। आपको और सुनना है? नो, इन लाउड वॉइस, डू यू हेयर मोर? सो बिशंबर नाथ जो ग्रॉसर था वो फिर से जाने लगा, यानी कि जो दूल्हा था बस जाने लगा। सो जो बैंड्समैन थे, जो
who were playing songs and tunes, उन सबको लगा कि this is the end of ceremony and they struck up the closing song. जो ending के टाइम गाना होता है वो बजाने लगे. They were confused. So रामलाल जो है वो वहीं पे खड़ा रहा, rooted to the ground, and उसका सर नीचे था, because why his head was bowed low, why his head was bowed down with the weight of grief and shame. उसे बहुत दुख था, उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हुई. अब जो फ्लेम्स थी ऑफ सैक्रेड फायर, जो हवन था शादी का, थोड़ी थोड़ी देर में बुझ गया. सब लोग चले गए. रामलाल भोली के पास मुड़ा एंड उसने कहा कि अब तुम्हारा क्या, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा ना, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं. तो अब जो सुलेखा थी, द भोली, ठीक है, ने धीरे से शांति से वॉइस में कहा कि आप पिताजी, आप डोंट वरी, आपके बुढ़ापे में आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी एंड मम्मी की भी, एंड मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा. Isn't that right, मैम? सो उसकी जो टीचर थी जिसने इतना सब सिखाया उसे, शी वॉज स्टैंडिंग देयर एंड वो सब कुछ देख रही थी. तो एंड सो उसने कहा कि ठीक है मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी. तो मैम से उसने कहा कि ठीक, isn't it right, मैम? तो टीचर ने कहा येस बोलिए, ऑफ कोर्स. एंड उसकी आँख में, किसकी, टीचर की आँख में, she was smiling and in her eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels after contemplating the completion of a masterpiece. यानी कि when an artist is viewing his or her masterpiece, so जो satisfaction होती है, deep satisfaction, वो टीचर की आइज में थी. सो हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. And I hope it's the chapter is written by K.A. Abbas. So I hope it was clear, and if you people have any doubt, you can drop down in the comment section. I'll try to answer. Thank you so much.